Hi friends, welcome to my class. In this lecture, I am going to cover the topic linear equation in two variables, right? Linear equation in two variables. Before starting the chapter, I would like to introduce what are the variable and what are the constants, because these two terms are very significant terms in this chapter, right. So, what are the variables and what are the constants? Variable को in short we can write var and constant को in short we can write in this manner. Variable. Friends, variable means those who are having change value, means no fixed value, जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. एंड कांस्टेंट मीन्स दे आर हैविंग फिक्स वैल्यू, वन पर्टिकुलर वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन. ओके, नाउ through some examples we can understand what are variables and what are constants. Like suppose I want to calculate the average of 5 person. ठीक है, now how I will calculate average? I'll take 5 values, any values, because they are not given कि वो किन values का average चाहते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं. Like I am taking 10, 20, 30, 40, 50, fine, and I want to calculate average of this values, but they have fixed that they want 5 average value of 5 numbers. Okay, so ये 5 नंबर है. yes, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. एंड 5 से डिवाइड कर देंगे. देन जो भी आंसर आए, इट मे बी एनीथिंग. ये तो मैंने 5 नंबर 10, 20, 30 ले लिए. आप 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है. क्वेश्चन इज जस्ट सिंपल, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज. सो वी कैन टेक एनी 5 वैल्यूज, बट इट शुड बी 5. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज 5. 5 इज लाइक अ कांस्टेंट and the values they are changing. आप जो भी चाहे वो ले रहे हैं, means they are variables. Okay, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए. Like I have a circle with radius 3, fine, center उसका O है. What is the radius? 3. I want to calculate the diameter of the circle. क्या होता है डायमीटर? डायमीटर इज 2 times ऑफ इट्स रेडियस. देन व्हाट विल बी द डायमीटर? 6 सेंटीमीटर, बिकॉज द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. इसी सर्कल को हमने चेंज कर दिया. नाउ सर्कल इज हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर. मान लीजिए ये छोटा सर्कल है और इसकी रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है. देन व्हाट विल बी द डायमीटर? डायमीटर इज 2 times of r and 2 into 1 which is equal to 2. अब इस दो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, then you can clearly differentiate that r is changing but 2 is not changing. Why? Because diameter is always be equal to twice of its radius. Diameter हमेशा radius का डबल होता है. तो डबल इज फिक्स, 2 इज फिक्स, बट r इज चेंजिंग. सर्कल छोटा भी हो सकता है, सर्कल बड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है. तो रेडियस क्या हुई यहाँ पर? वेरिएबल हुई, बट अकॉर्डिंग टू रेडियस उसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 यहाँ पर फिक्स है. सो हेयर 2 इज कांस्टेंट एंड r इज वेरिएबल. So now we can say variable की शॉर्ट में डेफिनेशन अगर हम कहें, means no fixed values and constant means fixed values. Fine. अब वेरिएबल को डिनोट कैसे करेंगे? तो वेरिएबल को डिनोट करने का तरीका होता है, we are having 26 alphabets, you can take any of them.
but generally we use X, Y, Z, P, Q, R, whatever, right? But these are general notification, not compulsory. And constant A, B, C, D ये हम इसलिए ऐसे ले रहे हैं कि हम अंतर कर सके, हम डिफरेंस कर सके इन दोनों के बीच में. अदरवाइज कोई फिक्स रूल नहीं है एंड कोई कंपल्शन नहीं है. यू आर फ्री एंड इट्स योर चॉइस. ओके, सो व्हाट आर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है एंड व्हाट आर द कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसके थ्रू देखा. एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं. आई हैव अ स्क्वायर side 2 and I have another square side 3. Suppose I want to calculate the perimeter of these two square. Fine. Perimeter क्या होता है? 4 into side. So 4 into side is 2. So answer will be 8 units. And in this question 4 into 3 4 into 3 is 12 units. इस स्क्वायर की जब साइड 2 है, जब इसका पेरीमीटर क्या आया है? 8 आया है. एंड जब इस स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट 3 है, देन पेरीमीटर इज 12 एंड दिस विल चेंज व्हेन साइड विल चेंज. फाइन. मीन्स 4 is here constant, 4 is acting like as a constant and side is acting as a variable. So you can say 4 is constant and side is variable here. Fine. Side स्क्वायर की 4 होती हैं और हमेशा 4 ही रहेंगी, बट साइड की मेजरमेंट चेंज हो रही है. यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है या 2 यूनिट है और हेयर इट इज 3 सेंटीमीटर और 3 यूनिट, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है. बट द क्वांटिटी ऑफ साइड, जो साइड होती है स्क्वायर में, वो हमेशा 4 ही होंगी. सो 4 इज कांस्टेंट एंड साइड इज वेरिएबल. So now I hope from these example you can understand what are the variables and what are the constants. पर ये अभी हमने जो बात करी ये केवल सिंगल वेरिएबल की करी. Now we'll continue for many variables or 2 variables. But before this I want to tell you that what are the linear equation. Then we will continue the topic linear equation in 2 variables. Fine. So what are the linear equation? हमने already पढ़ा हुआ है linear equation in one variable. And apart from maths, we generally use in our normal day-to-day life. Like I have x plus 4 equals to 12. ठीक है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसको हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू लें. लाइक लेंथ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ 5 है एंड ब्रेथ इज 2 लेस देन रेक्टेंगल. मीन्स लेंथ 5 है एंड ब्रेथ इज 2 लेस देन. मीन्स व्हाट विल वी डू? ब्रेथ इक्वल टू लेंथ माइनस 2 कर देंगे हम. सो अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. हम हमारी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं. लाइक आई एम 15 years older than you. So what will I do? I am Anshu. Anshu is, and you are students, 15 years older than particular student. Fine. So this is again linear equation. फ्रेंड्स, हम नॉर्मल लाइफ में लीनियर इक्वेशन को बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, बट हमको इसको फॉर्म में लिखने के लिए ये समझना ज़रूरी है. सो हम कैसे लिख रहे हैं? यहाँ पर हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, x लाइक है, तो इसको भी अगर हम बनाएंगे तो x के फॉर्म में बना सकते हैं, इनको भी हम बनाएंगे तो x के फॉर्म में बना सकते हैं. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होगा विच इज़ ax प्लस b इक्वल्स टू c. A, B and C are the constants and A is not equal to 0. ये जनरल फॉर्म है. इस जनरल फॉर्म में A, B, C कांस्टेंट है और A जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर हो गया तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी. देन देयर इज नो सेंस ऑफ दिस
constants. So what is the meaning is a is not equal to 0 means a जो है ये कोई वैल्यू होना चाहिए, इट मे बी एनी रियल नंबर, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, रूट का भी, फ्रैक्शन का भी, बट इट देयर शुड बी अ नंबर. अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं. लाइक we have x plus 4 equal to 12, then x equal to 12 minus 4 which is equal to 8. So in linear equation in one variable we can find the value x equal to 8 आ गया हमारे पास में, and ये अब फिक्स हो गया इस क्वेश्चन के लिए कि x is always be equal to 8 for this particular question. ठीक है. जब हमारे पास x equal to 8 आ गया है तो हम इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन होती है हमारी, ये प्लस सेट है इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर कर रही हूँ. 1 2 3 4 6 7 8. सो दिस इज अवर x. मीन्स इन वन वेरिएबल वी कैन रिप्रेजेंट द आंसर ऑन द नंबर लाइन और वी कैन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं x इक्वल टू क्या आया है 8. मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू 8. ठीक है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक आई हैव 2x minus 2 इक्वल टू 0. देन व्हाट विल बी द आंसर? 2x इक्वल टू 2, x equals to 2 by 2 means 1. इस एग्जाम्पल को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये 2 3 4 5 6 7 8. इस क्वेश्चन का आंसर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया. यस. सो व्हाट इट शोज, देयर इज ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जब भी वन वेरिएबल की इक्वेशन होगी देन सॉल्यूशन विल बी यूनिक, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा. सो वन वेरिएबल की क्या कंडीशन हुई कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा एंड वो सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ और प्रॉपर्टीज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी. अगर हम यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. लाइक we have x plus 4 equal to 12. Suppose I want to add 5 both the sides. Fine. So I have added 5 both the sides. एक side तो I can't add because the maths rule says we should add both the side or we should subtract from the both side. जो भी करेंगे हम दोनों side पे application करेंगे. Now it is 17. 17 minus 9. Then again it is 8. ठीक है. Means what we did, we have added 5 both the side but the answer is still same. Unique है answer 8, 1 है answer 8. एक ही आंसर आ रहा है, 2 3 4 आंसर नहीं आ रहे. Means one variable equation has always unique solution. Suppose I want to subtract. Again I am writing question. I want to subtract 3 both the side. इधर से भी मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी कर दिया. देन देखिए अगेन 8. what it shows, if we add or subtract in one variable equation both the side, then solution पे कोई effect नहीं आ रहा है. It is still same. The earlier answer was 8 and after adding or subtracting anything still the answer is 8. So what is the property? If we add or subtract any number both the side, then solution will remain the same and unique solution रहेगा. जो भी आंसर आ रहा है वो throughout the question एक ही आंसर आ रहा है. Fine. So this is linear equation in one variable. Same property multiply and divide के लिए भी applicable होगी. So if we multiply both the side, आप इसको note down कर लें.
देखिए अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वट एवर नंबर यू वॉन्ट, like I am multiplying by 2, okay, so I have to multiply here also because जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे वो का वही एप्लीकेशन हमें राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा. नाउ सिंपल मल्टीप्लीकेशन, फाइन. 2x equal to 24 minus 8, 2x equal to 16 and x equal to 16 by 2 means again 8. देखा आपने आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. वी मल्टीप्लाइड टू बोथ द साइड एंड द सॉल्यूशन इज स्टिल सेम. सो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल है. सो इन लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल there are 2-3 important properties. First is they have unique solution or one solution or fixed solution, जो भी आएगा वो एक ही होगा. And other property is if we add or subtract any number both the side, still the solution will be same, and same with multiplication and division. So friends, linear equation in two variable को समझने के लिए हमने सबसे पहले वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स को समझा. अगर ये क्लियर है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. प्लस हमने वन वेरिएबल की इक्वेशन को समझा. हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इसको बहुत सिंपल वे में कई बार यूज़ कर जाते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूज़ किया है और टू वेरिएबल यूज़ किया है. सो अब आते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे. सेम एग्जाम्पल्स को मैं कंटिन्यू करती हूँ. लाइक वी आर वॉचिंग अ मैच, एवरीवन लाइक क्रिकेट मैच, आप भी, और आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ मैच. ओके, देयर आर सो मेनी बैट्समैन, they are betting and the partnership of two batsmen score is 180. fine. ओपनर बैट्समैन मुझे पसंद है, माइट भी आपको भी पसंद होंगे. लाइक वी आर टेकिंग सचिन एंड सहवाग, माय फेवरेट जोड़ी. सचिन एंड सहवाग मेड 180 रन्स टुगेदर, मीन्स उनकी पार्टनरशिप जो है वो 180 रन की है. अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें सचिन ने कितने बनाए होंगे एंड सहवाग ने कितने बनाए होंगे. हाउ मेनी रन्स मेड बाय सचिन and how many runs made by Sehwag? We don't know. Might be Sachin made 100 because everyone's favorite god of cricket. Sachin made 100 and Sehwag made 80. तब भी ये 180 स्कोर होता है. Might be Sachin made 120 and Sehwag made 60. तब भी ये 180 होता है. वाइस वर्सा ले लेते हैं. Sehwag also plays very well, extremely well. मान लीजिए सहवाग ने 150 रन बना दिए, देन सचिन मेड 30, बट द कंडीशन इज कि उनका जो टोटल है स्कोर इट इज इक्वल टू 180. सो क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, सचिन एंड सहवाग कि दोनों के हम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं. मीन्स दोनों की बैटिंग स्कोर जो है वो चेंज हो रही है. मीन्स हियर वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स. सचिन इज वन वेरिएबल एंड सहवाग इज अनदर वेरिएबल. हम और एग्जांपल लेते हैं. यू आर ग्रेड 9 स्टूडेंट, यस, आपकी क्लास में बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे. फाइन. अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स की आज की प्रेजेंट अटेंडेंस अगर हम काउंट करें, मान लीजिए इट इज़ 45, देन बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं अभी हमें नहीं पता, तो वो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट देयर टोटल इज़ 45. फाइन. So here boy is one variable and girls are another variable. Suppose we consider boys as x and girls as y, then x plus y equal to 45. So I think कि अब आप two variable को समझ गए होंगे कि अब जो भी हम पढ़ेंगे it will depend on two variables. Fine. So we are talking about two variables. एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ. लाइक एवरीवन हैज़ फादर एंड सन और डॉटर. इन एवरी फैमिली वी हैव फादर एंड सन और डॉटर. लाइक फादर इज ट्वाइस ऑफ इट्स सन्स, और द एज ऑफ फादर एंड सन इज 80. फादर एंड सन इज 80, और द स्कोर ऑफ सचिन प्लस सहवाग
इज इक्वल टू 180, मीन्स इनकी पार्टनरशिप इज इक्वल टू 180। ये क्या शो कर रहे हैं? दो वेरिएबल। इनको अगर हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखें, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। हियर आई कैन कंसिडर फादर एज x and son as y. Similarly, in this question, I can consider Sachin as P, Sehwag as Q. Okay? दोस्तों, मैंने आपको बताया हम वेरिएबल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इन 26 अल्फ़ाबेट्स, बट जनरली हम एक्स वाई इसलिए यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, अदरवाइज देयर इज़ नो कंपल्शन टू यूज़ एक्स और वाई। ओके, सो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। ये क्लियरली दिख रहा है कि दो वेरिएबल है, तो जरूर इनका एक जनरलाइज फॉर्म होगा। सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, इस टर्म को हम इधर लाके ये एक जनरल फॉर्म हुआ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c are constants. Fine, a, b, c are constants. Also a and b are coefficient. मीन्स अगर मैं पूछूं x के आगे टर्म क्या है तो a, and what is the term before y is b, so a and b are called coefficients also. Fine, so this is general form of the linear equation in two variables. Okay, so हम इस फॉर्म को याद रखेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड अब हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, एंड इनको भी हम ग्राफ पे और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को करते हैं, ठीक है, बट इनके कुछ तरीके होंगे। नाउ विल फॉलो दैट पैटर्न्स। सो आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। लाइक क्वेश्चन इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। सबसे पहले हम इसे अरेंज कर देंगे। और सिंपल वे में अरेंज करेंगे। Why I have written in this manner? So that we can find A, B and C. और क्लियरली हम देख सकते हैं कि A, B, C क्या है। इससे अगर आप इन दोनों में देखें तो A 2 है, B -3 है एंड C -5 है। अगर हम ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे तो इट इज कन्वीनियंट फॉर अस, अदरवाइज देयर इज नो नीड इफ यू आर कंफर्टेबल डायरेक्टली। ओके, प्रैक्टिस से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट इनिशियली हमको अरेंज करके लिखना चाहिए। और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन इज राइट each of the following linear equation in the form ऑलरेडी हम फॉर्म जानते हैं, and indicate the value of A, B and C in each case. First part है 2x plus 7/2y equals to 5। कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले इसे हम अरेंज कर देंगे। 5 को हम इस साइड लेके आएंगे, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसे ऐसा लिख रही हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। ऐसा लिखने से वी कैन क्लियरली फाइंड A, B
and C. What is A? 2. What is B? 7 by 2. And what is C? minus 5. फाइन. इसका दूसरा पार्ट है 3x minus 6 equals to 7y. Now, in this question, x and y were on the left side. In this question, mix है, hodgepodge है. तो हम सबसे पहले अरेंज करेंगे, x and y की टर्म कलेक्ट करेंगे. Here it is plus 7y. When it will come to the left hand side, it will become minus 7y. ठीक. अगेन आपके लिए इसको मैं अरेंज कर देती हूँ. ax plus by plus c. This is standard form. So a is 3, b is minus 7 and c is minus 6. दोस्तों, अगर हम प्रॉपरली लिखते हैं तो देखिए क्वेश्चन कितना इजीली समझ में आ रहा है. इसका थर्ड पार्ट है 7x equals to 3y. देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर डिफरेंट टाइप्स. इन फर्स्ट इट वॉज ऑलमोस्ट अरेंज्ड. इन सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ था, राइट हैंड साइड पे कुछ था. इन थर्ड देर इज नो सी. Okay, only x terms and y terms. Then how will I write? 7 of x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस इन प्लेस ऑफ c I can write 0. जब कांस्टेंट है ही नहीं then I can write 0. 0 का कोई मतलब नहीं है. ax plus by plus c equal to 0. Now you can see a equal to 7, b equals to minus 3, c equals to 0. ठीक है. So इस क्वेश्चन से हमें ये क्लियर हुआ कि कैसे हम इसे जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे और ए बी सी को निकालने की कोशिश करेंगे.